하나님 감사합니다. Thank you, God. 파키스탄 캠프로 모이게 하시니 감사합니다. Thank you for giving us this chance to have Pakistani camp training. 하나님의 계획이 있어서 여기 온 모든 우리 식구들이 You may bless all these people who have God's plan tonight. 예수님을 나의 구주로 믿는 성령의 역사가 있게 하옵소서. May your Holy Spirit work on us so we can believe in Jesus tonight. 최고의 축복인 하나님 자녀로 살아가게 하옵소서. Let us live as a child of God, which is the best blessing for us. 완전 복음인 그리스도로 답을 가지고 Having the complete answer with complete gospel. 세계 복음화에 귀하게 쓰임 받는 Let us use for the world evangelization. 전도자로 세워지게 하옵소서. Please set us as evangelists. 오늘 이 장소에서 복음의 말씀이 역사되게 하옵소서. May your words of God be working on this place, on this people in this place. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. We pray in Jesus Christ's name. Amen. मसीह में आप सबों की सलामती हो. ग्रीटिंग इन क्राइस्ट जीसस नेम. 안녕하세요 여러분. 안녕하세요. तो आज हम जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसका एक मकसद है कि हम सीख सकें कि नजात की राह पर अनवान है हमारा खुदा के कलाम. तो आज हम देखते हैं कि खुदा का रास्ता हमारी निजात के लिए क्या है. तो खुदावन का रास्ता जो है वो बड़ा आसान रास्ता है, जो कि लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब 14 बाब और 6 आयत में कि यीशु ने उससे कहा. जवाब में यीशु कहता है कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता. यह है यीशु, हमारे खुदा का रास्ता. यीशु ने जो हमें दिखाया जवाबतन जब उनसे सवाल किया गया. तो इसमें हम देख सकते हैं इस स्क्रीन में कि बताया जाता है हमें कि तख्लीक का असूल. हमारा खुदा जो है असूली खुदा है. खुदा ने हर चीज़ असूल के मुताबिक पैदा की है. इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें उनका एक असूल है. तो असूल के मुताबिक मतलब खुदा ने जो मछली पैदा की है, मछली के लिए ज़बरदस्त जगह है पानी. ये पानी के अंदर मछली हर एक चीज़ जो उसके लिए ज़रूरी है वो पाती है. और इसी तरह परिंदे जो हैं उनके लिए है हवा, एयर, या जो दरख्त हैं उनके ज़मीन के अंदर. क्यों? क्योंकि जब जड़ दरख्त की जड़ ज़मीन के अंदर होती है तो वो दरख्त नशोनुमा पाता है, बढ़ता है, वो सूखता नहीं. अगर जड़ बाहर निकाल दें तो वो दरख्त ड्राई हो जाएगा, मर जाएगा. और इसी तरह अगर मछली को हम पानी से बाहर निकाल दें तो मछली तड़प कर मर जाएगी. तो जिस तरह खुदावंद हमारा असूल का खुदा है, तो उसी तरह खुदावंद हमारे ने हमें भी एक असूल के मुताबिक पैदा किया है. वो है असूल लिखा हुआ है पैदाइश की किताब 1 बाब और 27 आयत में कि चनाचा खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया. अच्छा,
اس صورت سے مراد بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کا ہماری طرح حلیہ ہے، ہاتھ پاؤں. نہیں میرے عزیزوں، ایسا نہیں، بلکہ خدا روح ہے. اس لیے خدا نے ہمیں بھی روحانی مخلوق پیدا کیا ہے. انسانوں میں اور جانوروں میں جو سب سے بڑا اہم فرق ہے میرے عزیزوں، وہ روح کا فرق ہے. اور اسی طرح 28 آیت میں خداوند نے جب پہلے انسان کو برکت دی، یعنی آدم اور حوا، تو خدا نے انہیں برکت دی اور ان سے کہا پھلو اور تعداد میں بڑھو اور زمین کو معرور اور معقوم کرو، کہ اس زمین کو بھر دو. یہ خدا کی برکت تھی پہلے انسان کے لیے. پھر کیا ہوتا ہے لیکن عزیزوں، یہ پیدائش کی کتاب 3 باب 1 آیت سے 6 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جب پہلے انسان کو پیدا کیا تو خدا نے انہیں وعدہ لیا تھا، ایک عہد تھا ان کے درمیان اور خدا کے. وہ کیا تھا کہ تم نے باغ عدن کے درخت کا پھل، نیک و بد کی پہچان والے درخت کا پھل نہیں کھانا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ایو ہے، ہوا، وہ سانپ کیونکہ بڑا چلاک تھا تو اس نے اسے پھنسا لیا. یہ کہہ کہ سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. لکھا ہے کہ سانپ نے عورت سے کہتے ہیں کہ تم ہرگز نہ مرے گا بلکہ خدا کی مانند ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خدا اور انسان کے درمیان عہد کا وہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میرے عزیزو ہم یہاں اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا اور انسان ایک ساتھ تھے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر گناہ آنے کی وجہ سے ان میں خلا آ گیا. اب یہ خدا اور انسان خدا کے ساتھ نہیں ہے، ان میں یہ خلا ہے، یہ گناہ، جس کی وجہ سے یہ نہیں آ سکتے. اور یہ خلا جو ہے، یہ خالی جگہ، یہ جو راستہ منقطع ہو گیا ہے ہمارے خدا سے انسان کا، اسے انسان اپنی کوششوں سے حل کرنے کی تلاش کرتا ہے. لیکن وہ کوششیں بلکہ اور زیادہ تباہی کی طرف، انسان کی جو کوششیں ہیں وہ انسان کو اور زیادہ میرے عزیزوں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. رومیو کی کتاب 3 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. یہ مطلب یہ گناہ کی وجہ ہے کہ لکھا ہے کہ وہ خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں، گناہ جب آ جاتا ہے. تو لیکن خدا نے تو انسان کو اپنے ساتھ پیدا کیا کہ انسان خدا کے ساتھ رہے، وہ اس کی آئیڈیل جگہ تھی، پر وہ گناہ کی وجہ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ گناہ جو ہے یہی وجہ بنتی ہے ہماری زندگیوں میں تباہی کی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تباہی، یہ اس کی وجہ ہے گناہ، جو کہ لکھا ہے رومیو کی کتاب 3 باب 23 آیت میں. اور پھر اس کے بعد پیدائش کی کتاب 3 باب اور 1 سے 6 آیت ہمیں بتاتی ہے علیحدگی. جو انسان اور خدا سے علیحدہ ہو گیا انسان، پہلا انسان، اس سے لے کے ابھی تک، تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کی جو آخری منزل ہے وہ دوزخ ہے. اس سے پہلے ہمارا جو ایسا نہیں تھا، پر یہ گناہ کی وجہ سے ہماری آخری منزل میرے عزیزو دوزخ ہوئی. اور پھر یوحنا کی کتاب 8 باب اور 44 آیت میں لکھا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کے بارے میں ہے کہ ہمارا مقدر کیا ہے، تقدیر. اور لکھا ہے یوحنا کی کتاب 8 باب اور 44 آیت میں، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی اور سچائی پر قائم نہیں رہا. تو یہ بتایا گیا شیطان کے بارے میں کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا خدا کے فرزند، پر یہ گناہ کی وجہ سے ہم خدا کے فرزند کے بجائے 44 آیت یوحنا کی 8 باب کی ہمیں بتاتی کہ خدا ہم سے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس کی مانند ہو. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ نتیجتاً کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں تکلیف ہے، انزائٹی ہے، پریشانیاں ہیں، جنگ ہے اور موت، اور اس کے بعد
हमेशा की मौत, और शैतान के हाथों में हमारी ज़िंदगी चली जाती है। और फिर वो हमारी क्या कहते हैं, शैतान ही हमारा मतलब फैसला करता है, सताए जाते हैं इस ज़िंदगी में और अगली ज़िंदगी में। ये है बुनियादी मसला इंसान का। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही वो मसला है जो कि मुख्तलिफ शक्लों में हमें ज़ाहिर होता है, और हम समझते हैं शायद फ़लाँ मसला जो मैं जिसका सामना कर रहा हूँ वो मतलब शायद पैसे की कमी की वजह से या मेरे घरानों की, लेकिन उसकी जो जड़ है वो ये बुनियादी मसला है। और वो क्या है? गुनाह, अलैदगी और शैतान। ये है 3 बुनियादी मसले, और इन 3 बुनियादी मसलों की वजह से हमें जो सामने आता है तबाही इंसानी ज़िंदगियों में, घरानों में तबाही, दोज़ख और तकदीर, कि मतलब इसमें से हम खुद बाहर नहीं निकल सकते। फिर ये जो गैर ईमानदार लोग हैं इनकी 6 हालतें हैं। तो जैसे कि हमने यूहन्ना की किताब 8 बाब और 44 आयत में सीखा कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो। खुदा ने हमें पैदा किया खुदा का फर्जंद, पर हम बन गए इब्लीस के फर्जंद। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, यही वजह हमारी जिंदगी में तबाही की। और जब इंसान इब्लीस का फर्जंद बन जाता है तो फिर इंसान की ज़िंदगी में रूहानी बीमारियां आती हैं, रूहानी परेशानियां। और इसका हमें पता चलता है खरूज की किताब 4 बाब और 5 आयत में, कि खरूज जो है वो कहता है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना। ये मतलब उन लोगों की ये रूहानी बीमारियां वो लोगों शिकार होते हैं जो बुत परस्ती करते हैं। बुत परस्ती की वजह से रूहानी बीमारियां, और रूहानी बीमारियों के बाद बहुत से लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में जानते होंगे जो दिमागी बीमारियों का शिकार हैं। दिमागी बीमारियां जिस्मानी बीमारियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। जो दिमागी बीमारियां ये बहुत ज़्यादा है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और फिर दिमागी बीमारियों से इंसान परेशान रहता है, मत्ती की किताब 11 बाब 28 आयतों में सिखाती है। फिर इसके साथ साथ जिस्मानी बीमारियां, जिस्म में तरह तरह की बीमारियां, और फिर आखिर में जब इंसान जिस्मानी बीमारियों के बाद मर जाता है, उसके मरने के बाद दोज़ख। और दोज़ख के बारे में देखते हैं लूका की किताब 16 बाब 19 और 31 आयत में इसके बारे में हमें बड़ा अच्छे तरीके से सिखाती है। लूका की किताब 16 बाब 19 और 31 आयत तक, इसमें हमें लूका जो है ये बड़े अच्छे तरीके से हमें इसमें बताया गया है कि जैसे कि 23 आयत में लिखा है, उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। लाजर ये कौन है? ये लाजर बताया जाता है कि वो जो कि अपनी इस जिंदगी में परेशान रहता है, लेकिन मरने के बाद वाली जिंदगी में वो उस मतलब लाजर की हमें आपको सबों को कहानी पता होगी कि वो मतलब जब अपनी जिंदगी में बड़ा गरीब होता है, लेकिन बाद में वो खुदा बाप अब्राहम की गोद में होता है। तो हमने खुदा की गोद में जाना, ना कि हमने इन बीमारियों में मुब्तला रहना है मेरे अजीजों। और फिर ये जो गैर ईमानदार लोग हैं, इनकी जिंदगी यहाँ तक ही नहीं खत्म हो जाती कि ये मतलब इस दुनिया से चले गए तो उनका सब कुछ खत्म, बल्कि उसके बाद ये जो मसला है कि उनकी नस्ल दर नस्ल तकालीफ जारी रहती हैं। कि मतलब जो उसका अगला शख्स का गैर ईमानदार का बच्चा होगा या बच्ची होगी, वो यहाँ से उसकी मसाइल शुरू हो जाएंगे कि वो मतलब इब्लीस का फर्जंद है, होगा अपनी ज़िंदगी में, रूहानी बीमारियों का शिकार होगा, दिमागी बीमारियों का शिकार होगा और जिस्मानी बीमारियों का, और वो भी उसकी अगली नस्ल भी इसी तरह इसी तकालीफ में ख़त्म हो जाएगी। ये हमें बाइबल सिखाती है कि ये गैर ईमानदारों की हालत है। इस हालत को हल करने के लिए बहुत सी दुनिया ये जानती है, हत्ता कि गैर ईमानदार लोग भी ये जानते हैं
کہ جب دوزخ ہماری زندگی ختم ہوگی, موت کے بعد جو ہے وہ قیامت ہے. اس پہ غیر ایماندار لوگوں کا بھی ایمان ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ موت ہماری یہ زندگی جو ہے یہ ابدی نہیں, عارضی ہے, اور اس کے بعد قیامت ہے اور حساب کا دن, یوم حساب جسے ہم کہتے ہیں. اور جنہوں نے خدا کو نہیں جانا, خدا پر ایمان نہیں لائے, تو وہ جو ہے وہ ان کے لیے دوزخ انتظار کر رہی ہے. اور عبرانیوں کی کتاب 9 باب اور 27 آیت بالکل اس کے بارے میں ہمیں بالکل صاف صاف ہمیں یہ سکھاتی ہے. عبرانیوں کی کتاب 9 باب اور 27 آیت میں 27 آیت اور لکھا ہے, اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. یہ جتنی انسان یہاں پر پیدا ہیں اس دنیا میں, ان ساروں کا یہ ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے. وہ بے شک کسی بھی ایمان سے ہو, کسی بھی پس منظر سے ہو, اس جتنی دنیا جو انسان اس زمین پہ پیدا ہوئے, موت کے بعد اس کا حساب مقرر ہے. یہ عبرانیوں کی کتاب میں لکھا ہے میرے عزیزو. اور پھر اسی طرح مکاشفہ کی کتاب 14 باب اور 14 باب 10 اور 11, یہ 2 آیتیں. مکاشفہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری ہے مستقبل کے بارے میں ہے, کہ آنے والے کل کے بارے میں یہ کتاب ہے. یوحنا نے لکھی ہے یہ مکاشفہ, یوحنا عارف کا مکاشفہ اسے کہتے ہیں. اور لکھا ہے, وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کے پتے کو پیے گا جو اس شخص کے عذاب کے پیالے میں بری گئی ہے, اور پاک فرشتے کے سامنے, برا کے سامنے آگ اور کندھا کے عذاب میں مبتلا ہوگا, اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا. اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں, ان کو رات دن چین نہ ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس دنیا میں بت پرستی, خاص کر کے ان کے بارے میں یہاں پہ یہ 11ویں آیت میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بت کی پرستش کرتے اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں, ان کو رات دن چین نہ ملے گا. میرے عزیزو, تو انسان کیونکہ کوئی بھی جو بے شک خدا پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں, اس کا ان چیزوں پر ایمان ضرور ہے, تو اس لیے انسان نے ایک اپنا راستہ بنایا. یہ انسان کا راستہ ہے میرے عزیزو. یہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک تلاش میں ہے, ایک کوشش میں ہے, جو کہ اس کا حل ہو. جو اسے یہ مسائل ہیں, موت, یوم حساب اور دوزخ انتظار کر رہے ہو, تو اس کے لیے انسان کے کچھ بنائے گئے رستے ہیں. وہ رستے کیا ہیں؟ وہ ہے مذہب. دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں. اعمال کی کتاب 4 باب اور 12 آیت میں اس کے بارے میں لکھا ہے. اعمال کی کتاب 4 باب اور 12 آیت میں, اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں بخشی گئی جس کے وسیلہ, ایسا کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. کہ مطلب کہ یہ جو نام ہے وہ صرف ایک ہے. تو پھر اس کے بعد یہ انسانوں نے مذہب بنایا ہے, اور اس کے بعد یہ فلسفہ کیا ہے کہ فلسفہ ایک وہ تعلیم ہے جس میں لوگ فلسفہ کے ذریعہ سچ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں انسانی اعتبار سے. تو فلسفہ کے بارے میں ہمیں جواب ملتا ہے کلسیوں کی کتاب میں. کلسیوں کی کتاب اور 2 باب اور 8 آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ یہ وہ لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ فلسفے سے پانے کو ہے اپنے جواب. خبردار, کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے, نہ کہ مسیح کے موافق ہے.
کہ مطلب یہ تقریباً ایک عرصہ دراز پہلے سے اس تعلیم کے بارے میں ہماری کلام مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے یہ شیطان کا میرے عزیزو ایک جھانسا ہے انسان کو اپنے چنگل میں لانے کے لیے. ہم نے اس کے جھانسے میں نہیں آنا. تو پھر اس کے بعد نیک عمل. بہت سے مذاہب میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بہت سے ہمارے معاشروں میں ثقافت میں کہ ہم نے جی اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے ہیں. ہم جتنے زیادہ نیک عمل کرتے جائیں گے تو ہم اس کے ذریعہ سے اپنے خدا کو پالیں گے, پر ایسا نہیں ہے. نیک عمل سے ہم خدا کو نہیں پا سکتے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے جو نیکی ہیں وہ دراصل خدا کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہے, دجیوں کی مانند ہے ہماری جو ہم انسانی نیکیاں کرتے. تو پھر حل کیا ہے کہ مطلب انسان نے مذہب بنایا, فلسفی بنائی اور نیک اعمال, پر انسان کے مسائل تو وہاں پر ہی ہیں. تو حل کیا ہے؟ حل میرے عزیزوں, کیونکہ ہم انسانوں کے پاس نہیں, تو حل جو ہے وہ ہمارے خدا نے ہمیں دیا ہے. اور وہ حل کیا ہے؟ تمام پریشانیوں کا حل صرف خدا ہے. ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں جو آج ہیں, جو کل ہوں گے یا جو آنے والے کل ہوں گے, ان ساروں کا حل جو ہے وہ تمام پریشانیوں کا حل صرف خدا ہے. کیونکہ خدا کا کام نجات کا کام ہے. اور نجات سے مراد کیا ہے؟ نجات سے مراد ہے چھٹکارا. کہ جیسے ہم مطلب خدا نہ خواستہ اگر انسان کسی بیماری میں ہو تو اسے وہ بالکل اسے شفا مل جائے, وہ بھی ایک قسم کی نجات ہے کہ اس سے جان چھوٹ گئی اس بیماری سے. تو چھٹکارا ہے نجات کا معنی, کسی چیز سے جان چھوٹ جانا, اسے ہم کہتے ہیں نجات. اور نجات کے بارے میں یوحنا کی کتاب 3 باب اور 16 آیت میں دیکھتے ہیں ہم کیا یوحنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ یوحنا کیا کہتا ہے کہ نجات کیا ہے. لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہے عزیزو نجات کا معنی. اس کا معنی ہے یوحنا کی کتاب 3 باب اور 16 آیت کہ وہ ہے محبت. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اب ہم یہ سمجھ گئے کہ نجات کا معنی کیا ہے اور خدا کی محبت کیا ہے. دو یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں جو اس آیت میں ہمیں سمجھ آتی ہے. اس کے بعد وہ محبت کیا ہے خدا کی؟ وہ خدا کی محبت ہے میرے عزیزو یسوع برا کی شکل میں جو یسوع اس دنیا میں آئے, تو وہ ہے خدا کی محبت اس دنیا کے لیے. اور یسوع نے اس دنیا میں جب آئے ہیں تو انہوں نے 3 کام کیے ہیں. وہ 3 کام یہ ظاہر ہوتے ہیں, پر یسوع کو ہم کہتے ہیں مسیح, یسوع مسیح. اور یسوع اس کا نام ہے. جیسے میرا نام سیام ہے تو میں مطلب اگر ڈاکٹر ہوں یا میں ایک مزدور ہوں تو میں مزدوری بھی کرتا ہوں. اسی طرح جو یسوع ہے, یسوع اس کا نام ہے اور مسیح اس کا پیشہ. مسیح پیشہ ہے, اس کا کام. تو یہ 2 چیزیں ہم نے ضرور سمجھنی ہیں کہ یسوع نام, مسیح پیشہ, اس کا کام. اور یہ مسیح کے کیا اس کے معنی ہے؟ مسیح کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلب معنی کیا ہے مسیح کے؟ مسا ہوا, انوائنٹڈ ون. جی, مسیح کے معنی ہے مسا کیا ہوا. اور میرے عزیزو یہ 3 قسم کے انسان جو ہیں اس دنیا میں مسا کیے جاتے ہیں. پاسبان مسا کیا جاتا ہے, نبی مسا کیا جاتا ہے اور بادشاہ مسا کیا جاتا ہے. اس دنیا میں جو تیل سے مسا ہوتے ہیں یہ 3 قسم کے اقسام کے لوگ مسا ہوتے ہیں, پاسبان, نبی اور بادشاہ. اور میرے عزیزوں ہمارے مسیح یسوع نے یہ تینوں کام کیے, جس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا مسیح یسوع پاسبان بھی ہے, نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. تو
अगर हम इसे देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि मसीह ने पासबान के मार्फत क्या काम किया, जो कि लिखा है मरकस की किताब 10 बाब और 45 आयत में। मसीह का पासबान के एतबार से काम, और घर में शागिर्दों ने उससे इसकी बाबत फिर पूछा। ये मतलब किसकी बाबत पूछा है वो हम देखते हैं 45 आयत में। शागिर्द उससे पूछ रहे हैं और फिर यीशु कहते हैं, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान को बथेरों के बदला में फिदिया में दे। जान को कुर्बान करना मतलब खून, ब्लड, खून है मसीह। तो ये बड़ी एक सिग्निफिकेंस है, एक कि हमारी तरफ ये बड़ा इशारा है इस आयत में कि पासबान मानी खून इसमें जाहिर हो रहा है हमें। 45 आयत में साफ साफ लिखा है, और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। फिदिया मतलब कुर्बान करना। तो फिर नबी हम जानते हैं अजीजों, नबी का मानी है रास्ता दिखाने वाला। पुराने अहदनामे में हत्ता के नए अहदनामे में हमें बहुत से लोग नबूवत करते मिलते हैं। यसाया ने बड़ी नबूवतें की हैं। यसाया ने बहुत हमें बताया है कि आने वाले वक्त के बारे में। और एक और जो नबूवत, ये वो नबूवत है जो कि यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में खुद की है, अपने मुंह से वो अल्फाज कहे। 14 बाब की, यूहन्ना की किताब 14 बाब और 6 आयत में यीशु कहता है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये यीशु है कि यीशु जवाब में कहता है कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी। तो फिर यीशु ने जो तीसरा काम बादशाह के एतबार से किया वो है, अच्छा बादशाह का काम जैसे कि हम जानते हैं आज के दौर में भी और पुराने ज़माना में भी कि बादशाह कौमों पे, दूसरी कौम पे चढ़ाई करते थे, उसकी मतलब ज़मीन अपने फतेह कर लेते थे। तो यीशु ने क्या फतेह किया हम देखते हैं 1 यूहन्ना 3 बाब और 28 आयत में कि हमारा यीशु फातेह यीशु है। पर यीशु हमने फातेह क्या किया वो आज हम सीखेंगे 1 यूहन्ना 3 बाब की 8 आयत में कि लिखा है कि जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटा दे। ये है यीशु का काम कि खुदा का बेटा, कि जो जिंदा खुदा का बेटा है वो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए आया, और ये काम है बादशाह का काम। तो आज अभी हम ये समझ गए कि मसीह के मानी और मसीह के काम, यीशु उसका नाम है, मसीह उसका काम है करने का, जो उसका पेशा था, जो उसने काम किया वो है मसीह। और 3 इकसाम के मसालें दी गई कि ये 3 वो लोग हैं जो कि मसा किए जाते हैं, और ये तीनों काम मेरे अजीजों यीशु ने किए मसीह बन के इस दुनिया में। तो इससे हम आगे चलते हैं। तो ये है कि कबूलियत की दुआ, कि जैसा कि हमने आज जो कुछ सीखा है मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बगैर ईमान और खुदा के फजल के हम इसे कबूल नहीं कर सकते। नामुमकिन बात है कि अगर हम कहें कि नहीं, मैं अगर खुदा ना चाहे, खुदा की मर्जी ना हो और इंसान कहे कि नहीं यार मैं इसे अपनी मर्जी से कबूल करता हूँ, ऐसा नहीं। इसीलिए इफिसियों की किताब 2 बाब और 8 और 9 आयत में बड़े साफ अल्फाज में इसके बारे में लिखा है कि ये वो लोगों के बारे में है जो यीशु को कबूल जिन्होंने किया। इफिसियों की किताब 2 बाब 8 और 9 आयत, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। ये मतलब मेरे नेक कामों की मर्जी से भी नहीं, और ना ही मतलब मेरे कोई खुदा की तरफ से ये तोहफा है, बख्शिश।
कि मतलब ये फजल और ईमान ये खुदा की तरफ से तोहफा है। तो इसमें हमारी अपनी कोई जुस्तजू नहीं, मतलब जैसे हम देखते हैं कि कोई किसी को कुछ तोहफे में मिल जाए, वो शायद उसे डिजर्व ना भी करता हो, लेकिन वो उसे तोहफे में मिल गया। मतलब हमारे माँ बाप की तरफ से हमें कोई चीज़ मिल जाती है बाज़ औक़ात, तो वो हम नहीं भी डिजर्व कर रहे होते, लेकिन अगर वो माँ बाप की तरफ से मिले जो जिस्मानी है, तो शायद वो उनकी मोहब्बत में वो हमारे लिए तो नुकसानदेह हो, लेकिन जो हमें बख्शिश, जो तोहफा खुदा की जानिब से मिलेगा, वो हमारे लिए मेरे अजीज़ों कभी भी नुकसानदेह नहीं होगा, वो उसका फ़ायदा है, और जब तक हम जिंदा है तब तक इसका फ़ायदा है। तो और इसीलिए मेरे अजीज़ों, यस्सु जो है वो हमारे, ये लिखा है कि यस्सु हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है कि अगर तुम खोलो तो मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा और तुम मेरे साथ। तो यस्सु तो हमें कबूल बुलाता है आज भी, और ये लिखा है मकाशवा की किताब 3 बाब और 20 आयत में, मकाशवा की किताब 3 बाब और 20 आयत में यस्सु जो है हमें बुला रहा है, पुकारता है कि लिखा है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। जैसे इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि यस्सु के मतलब एक शबी दी, उसके मुशाबे किया गया है कि कोई बंदा है जो दरवाजे पे खड़ा है, कि लिखा है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। तो यस्सु हमारा आज दरवाज़ा खटखटा रहा है दिल का। तो अगर हम यस्सु के अंदर अपने दिल के बुलाते हैं तो यस्सु हमारे दिलों में आ जाएगा और फिर वो हमारी रहनुमाई और मदद करेगा हमेशा के लिए। तो अगर आप यस्सु पे ईमान रखते हैं तो हम जो है वो अपने ईमान का इकरार करेंगे कि हम यस्सु अपने खुदा को मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं और उसका हम मुंह से इकरार करते हैं, जो कि लिखा है रोमियो की किताब 10वां बाब 9 आयत से 10 आयत में इसके बारे में लिखा है। रोमियो की किताब 10 बाब 9 आयत और 10 आयत में लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया तो तू नजात पाएगा। और 10 आयत में लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार करना मुंह से होता है। कि मतलब अगर हम रास्तबाजी में तो दिल से इकरार करते हैं, ईमान हमने दिल से लाना है, पर इकरार हमने अपने मुंह से करना है। तो मेरे अजीजों, आप में से अगर कोई चाहे तो आज इकरार कर सकता है और मेरे पीछे दुआ के वसीला से हम एक छोटा सा इकरार कर लेते हैं। सो एक्सेप्टेंस प्रेयर, सो यस, ओके। तो हाँ, मैं उर्दू में बोलूँगा, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। सो आए हम कबूलियत की दुआ करें अपनी आंखों को बंद करके। लेट्स वी प्रे फॉर एक्सेप्टेंस प्रेयर। ऐ खुदावंद, मैं इकरार करता हूं कि मैंने आपके हुजूर गुनाह किया, पर मैं खुदावंद ये जान चुका हूं कि आपकी मोहब्बत लाफानी है, क्योंकि आज हमने ये सीखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद खुदा, मैं आपको अपने दिल में दावत देता हूं, आप मेरे दिल में आए और मेरे उस्ताद के एतबार से मेरी रहनुमाई और मदद फरमाए। मैं खुदावंद आपका शुक्र अदा करता हूं मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। तो मेरे अजीजों, बहुत बहुत मुबारक हो
आपको मसीह को कबूल करने की। तो अभी इससे पहले हमने देखा था कि गैर ईमानदार लोगों की जो 6 हालतें, पर अब क्योंकि हम खुदा पे ईमान ले आए हैं तो अब हम देखते हैं कि 6 ये बरक़ात जो हैं वो क्या क्या हैं। पहले हमने देखा कि गैर ईमानदारों की जो परेशानियां हैं, और अब हम देखेंगे बरक़ात क्या क्या हैं। कि पहला करंथियों 3 बाब और 16 आयत में लिखा है कि जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं तो खुदा हम में हमारी रहनुमाई करता है। खुदा को हम जब इकरार कर लें तो खुदा हम में आ जाता है और हमारी वो मदद और रहनुमाई करता है। हर एक हमारे फैसले में हमारा जो मददगार होता है वो हमारा खुदावंद होता है। और जो कि लिखा है पहला करंथियों 3 बाब और 16 आयत में कि खुदा क्या कहता है। पहला करंथियों 3 बाब और 16 आयत में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो ये है कि अब जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं तो हम खुदा का मकदस यानी खुदा का घर बन जाते हैं। तो खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। तो फिर ये जब खुदा का रूह हम में बसता है तो वो फिर हमारी मदद करता है। तो खुदा जो है वो हमारी रहनुमाई और मदद करता है। और फिर हम ये आयत देखेंगे यूहन्ना की किताब 16 बाब और 24 आयत को कि फिर खुदा के हमारी ज़िंदगियों में काम क्या क्या होते हैं। यूहन्ना की किताब 16 बाब और 24 आयत में खुदा के कामों के बारे में बताया गया है कि खुदा के काम क्या क्या हैं। और वो हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं, मांगो तो पाओगे, तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। कि ये है खुदा के काम कि हम जो दुआ करते हैं उसके हमें जवाबात मिलते हैं जब खुदा के काम हमारी ज़िंदगियों में शुरू होते हैं। आज हम दुआ करते हैं, हम कहते हैं जवाब ही नहीं मिल रहा, क्या करें। लेकिन जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं तो हम जो जो दुआ मांगते हैं खुदा उसके हमें जवाबात देता है। क्यों? खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। तो फिर वो खुदा के काम हमें नजर आते हैं। इसी तरह तारीखी जो है, आप जहाँ पे भी जाएंगे तारीखी आपसे दूर भाग जाएगी। कि ये आपको इख्तियार होगा कि जिस जगह पे आप जाएंगे वो जगह आप फातेह कर लेंगे। उस जगह के आप उसके वो जगह आपके ताबे हो जाएगी। और मत्ती की किताब और 12 बाब 28 और 29 आयत में इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या इख्तियार हैं। मत्ती की किताब 12 बाब 28 और 29 आयत में कुछ इख्तियारात की बात की है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। या क्योंकि कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है जब तक से कि पहले से उस जोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूट लेगा। कि मतलब ये है कि ये जो हम जिस जगह पे चले जाएंगे वो जगह हमारी हो जाएगी। जिस जगह पे हम पाँव रखेंगे वो जगह हमारी हो जाएगी। वहाँ पे जितनी तारीखी की बदरूह हैं वो बंध जाएंगी मसीह यीशु के नाम से। तो फिर ये कि फरिश्ते हमारी मदद करते हैं। ये है बरक़ात ईमानदारों की जो खुदा पर ईमान लाते हैं। उनके लिए जो आसमानी फरिश्ते हैं वो उनके मददगार हो जाते हैं। वो जहाँ कहीं भी होते हैं उनकी हिफाजत में आसमानी फरिश्ते लग जाते हैं। और फिर आसमानी शहरियत, ये आसमानी शहरियत इसी तरह जैसे मेरे पास पाकिस्तानी शहरियत है, आप सारों के पास कोरियन शहरियत है। तो मतलब ये कि हम वहाँ पे पैदा हुए हैं। पर ये हमारा एक घर है जिसके बारे में लिखा है फिलिपियों की किताब 3 बाब और 20 आयत में हमारी शहरियत के बारे में बताया गया है। फिलिपियों की किताब 3 बाब और 20 आयत में के लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने का इंतजार में है। कि आज हम यहाँ पे मौजूद हैं कोरिया में, पर हमारी जो शहरियत है वो पाकिस्तान की है।
पर इसी तरह अभी हम ज़मीन पे मौजूद हैं, खुदा की ज़मीन पर हमारा जो हम तलबगार हैं वो आसमान की शरीयत के। उस वक्त जब हम मसीह यस्सु को ईमान मसीह यस्सु पर लिए आते हैं तो ये वो इख्तियारात हैं, वो बरक़ात हैं जो कि ईमानदारों को मिलते हैं। और फिर उसके बाद आलमी बशारत यानी कि जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं मतलब पाकिस्तान में मसीह घराने में पैदा हुआ, पर मेरे अजीज़ों मैं आपको अपनी गवाही छोटी सी देना चाहूँगा कि मतलब बेशक मैं मसीह घराने में पैदा हुआ पर खुदा के कलाम से मैं नावाकिफ़ था। मैं यहाँ पर आया, कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनके दिलों में आलमी बशारत थी, उनके दिलों में यह बोझ था कि जो लोग यहाँ पे गैर मुल्की आए हम उन तक खुदा का कलाम पहुँचाएँ। तो इसी तरह जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाएँ कि हम तो हमारी ये जिम्मेदारियों में भी है कि हम अगर कोई दूसरे मुल्क के बंदे से मिलें या अपने मुल्क के ही तो हम उससे मसीह की नाम की मुनादी करें, जिसे हम कहते हैं आलमी बशारत। और इस अंजील को हमने दूसरे ममालिक में लेके जाना है। आज दरअसल जैसे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये भी आलमी बशारत का एक छोटा सा हिस्सा है कि हम दूसरे मुल्क की दूसरी सकाफत में अंजील के पैगाम को पहुँचाएँ। तो ये इसके बारे में हम लिखा है मत्ती की किताब 28 बाब और 16 से 20 आयत में कि जाओ और सब कौमों को अपना शागिर्द बनाओ, कि हमने सबको अपना शागिर्द बनाना है। तो ये आखिरी आयत हम देखते हैं मत्ती की किताब 28 बाब और 16 से 20, ये 5 आयत हैं। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें कहीं और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये है आलमी बशारत। 20वीं आयत के हमने सब कौमों को अपना शागिर्द बनाना है। तो जब हम ये कर लेते हैं तो फिर हमारी जो यहाँ की जिम्मेदारी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये मेरे अजीज़ों आज का कलाम था जो कि हमने सीखा है। तो अभी मैं पास्टर साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और हमारे साथ जो है वो कलाम बरकत जो हैं वो हमारे साथ बयान करें। तो पास्टर प्लीज़ come and give us benediction for today's message. 감사합니다. Thank you, God. 오늘 캠프에 초청된 모든 사람들의 흑암이 꺾여지게 해주시고 May all the forces of darkness be broken down upon these people here. और हम दुआ गो हैं खुदावंदा के तमाम तर तारीखी की बदरूहें मसीह यीशु के नाम से इस जगह पे बंध जाएं। 정확한 그리스도의 복음이 이들 생명 가운데 각인되어지게 해주시오. May the gospel of Christ Jesus be imprinted in their heart. और मसीह यीशु की अंजील हम तमाम तर लोगों के जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं दिल में नकूश हो। 이들의 영과 혼과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개고 마음의 생각과 뜻을 판단할 수 있는 은혜를 주시옵소서. May give them the grace so their physical body and their spirits and their heart be blessed by the Christ Jesus. और खुदा हम दुआ गो हैं कि जितने लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं हर एक को अपने फजल के जरिया से दिल, दिमाग और जिस्म की तमाम तरह परेशानियों से आज़ाद कर दीजिए। खुदा मैं दुआ करता हूँ। 그리스도로 새 생명 주시어 이들의 모든 흑암이 꺾여지게 하시며 Give them the new life in their hearts so the darkness will be broken down. और खुदा मैं आपसे दुआ गो हूँ कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं हर एक को आज नई जिंदगी दीजिए और तारीखी जाती रहे। 더러운 귀신이 떠나가며 약하고 아픈 부분이 치유되어지게 하시며 May all the devils be outcast and get healed. और तमाम तर अबलीस के काम जाते रहें और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो सारे आज शिफा पाएं। 하나님 나라가 이들의 영혼과 가정과 현장과 그 나라에 임하도록 역사해 주시옵소서. May God's kingdom come upon their family, their country, and their soul. और खुदा मैं आपसे दुआ गो हूँ कि खुदा की बादशाहत
हमारे मुल्क हमारे घरानों में कायम होती रहे. 이들의 인생에 예배가 빛이 되게 해주시고 May the worship become the light of their life. और खुदावंदा हम आपसे दुआ करें कि आज की 27 हमारी जिंदगियों में नूर की मानी रहती रहे कायम हमेशा. 남은 인생을 생명 살리는 전도자로 축복해 주시옵소서. May bless them so they can live as evangelists. और खुदा हर एक को जो जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं बरकत दीजिएगा कि वो मुबशर के एतबार से अपनी जिंदगी को जिए. 지금은 우리를 구원하신 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 May the grace of the Lord Jesus Christ और अब खुदावन का फजल यानी यसु मसीह 하나님 아버지 놀라우신 사랑하심과 and the great love of God और खुदा की अजीम मोहब्बत 성령님의 감동 역사 충만하심이 and the working and filling of the Holy Spirit और खुदा के अजीब काम रूह कुदस के काम 캠프에 참석한 모든 주의 종들 머리 위에 영원토록 항상 함께 있을지어다. upon all the people who gathered here, be both now and forevermore. और वो तमातर लोग जो यहाँ पर आज मौजूद हैं अब से लेकर अब्दुल्लाबाद. 아멘. Amen. आमीन. Thank you. Thank you. 감사합니다. शुक्रिया. 감사합니다.